भाई तो हिलाल साहब जो तर्जुमा और क़िरात पेश कर रहे थे सूरह नूर कुरान से. So before we continue our program, I would like to give you a brief introduction of the series of the things or the program that we are going to do here today. First of all, the time of this program was 3 o'clock. However, we are 15 minutes late because of absence of people and absence of our audience. So now the program has started at 3:15. So the first 5 minutes was for Qiraat and Tarjuma of Quran, Surah Noor. Now the next thing is that we are going to call about 6 speakers from the audience, and you will speak either in Hindi, English or Urdu, right? You will come here and you will speak. The names have already been decided. After these 6 speakers, at 4 o'clock we have a refreshment break for 15 minutes from 4 o'clock to 4:15. You can go and you can have snacks out there. So these 15 minutes is for namaz and for refreshment. And after 4:15, starting from 4:15 to 5 o'clock, we have a speech from Shoaib Sahab, which is who is our speaker for today. So before we start and we start calling our speakers, our 6 speakers from audience, I would like to give a small introduction of this program, that what this program is all about. So as the name appears, Stop Women Exploitation. There was a survey in 2002 according to which in every 54 minutes in India, in every 54 minutes, there is an exploitation case, there is a rape in every 54 minutes. And this survey was done in 2002, right? In 2002, every 54 minutes, there is an exploitation case. If we do the same survey in 2012 or in 2011, the number of the cases are that much higher, that every 20 minutes there is a same case, same exploitation or rape case. So you can look at the graph in these 10 years that it's approximately double, right? It was 54 to 20 minutes, right? So the graph is approximately double. So we as a human being, we have to think about what is the reason, what is the cause, or what is the cause behind this, and what we can do to stop this kind of inhuman activities or whatever is going on in India. However, this is applicable in the entire world, of course, but here, because we are in India, so we are talking about India. Okay, so this is just a small introduction. So our first speaker is Chandan. So I would like to call Chandan to please come here and say a few words about this topic, women exploitation, and he will share his views on this topic, and then we'll continue our speakers out here who are from our audience. So Chandan, please come here. Thank you. नमस्कार. जैसा हम जानते हैं कि हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि दिल्ली में जो वारदातें हुई हैं उनमें एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खासकर कुछ चंद दिनों के अंदर. और इनमें जो स्पेशल केस हम मेंशन कर सकते हैं वो है दिल्ली गैंग रेप केस, जो कि एक बहुत जघन्य अपराध किया गया है. और जैसा कि आज मैं खबर पढ़ रहा था, एक ऑनगोइंग इशू है, इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं. और आज मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें से जो भी है 6 एक्यूज में से एक एक्यूज है. आप वो जानकर मतलब ये आश्चर्य होंगे, उनमें से एक ने कहा कि दिल्ली में मेरा ट्रायल जो है वो ना हो, कहीं और हो. तो इनका ये सोच है कि भाई
कहीं और ये जाएं तो शायद ये बच जाएं, बट ये नहीं जानते कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं ये ना बच पाएंगे, ना इनको कोई मतलब शांति मिल पाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत जंग खराब किया है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर हम जैसा हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, तो बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। खासकर हमारे जो औरतें हैं उनका लिबास सही हो, एटीट्यूड सही हो, और जो बच्चे हैं उनको हम बचपन से कुछ ऐसी शिक्षाएं दें ताकि वो इस तरह के वारदातों के पीछे ना पड़े और उनका जो समाज में रवैया हो बहुत अच्छा हो, और एक तरह हम समाज में एक अच्छी सोच विचार और एक अच्छा वातावरण पैदा कर सके ताकि हमारा समाज उज्जवल हो और सबके लिए एक अच्छा वातावरण पैदा हो। बस मैं ये कहना चाहूँगा। नमस्कार। बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक, और मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ तो आएगा, जैसे कि हमारे सरकार में कहा गया है कि सबकी तरफ से आमंत्रण है, एक तरह सुझाव पैनल तैयार किया गया था कि सबके सुझावों से इकट्ठा करके एक अच्छा एक पैनल तैयार किया सके ताकि इस तरह की अपराधें जो है रोकी जा सके। धन्यवाद। शुक्रिया सुमन साहब, बहुत अच्छे व्यूज रखते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो आज के डिस्कशन का टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, खलीकुज्जमा साहब प्लीज आप आएँ और यहाँ तशरीफ रखें, और जलील अकबर साहब, खलील अहमद साहब, आप प्लीज आप लोग आगे आएँ और यहाँ तशरीफ रखें। तो मैं बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा खलील अहमद साहब का और जलील अकबर साहब का और खलील अहमद साहब का कि आप लोग यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो सेकेंडली आई वुड लाइक टू कॉल सुरेश, इफ सुरेश इज अवेलेबल आउट हियर, प्लीज कम एंड प्लीज से सम वर्ड्स अबाउट आवर टॉपिक टुडे, दैट इज women exploitation. नमस्कार आप सभी लोग और मुख्य को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर को, जिसने इस एक मंच को जिसने प्रोवाइड किया कि हम इस पे आकर के इन सब चीजों को डिस्कस करें। स्टॉप वुमेन एक्सप्लॉयटेशन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शायद इसको इतना पुराना हम कह सकते हैं जितना पुराना मानव इतिहास है। जब मानव एग्जिस्ट करना शुरू किया होगा, मुझे लगता है कि तभी से वो एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हुआ होगा। और मैं ये भी मानता हूं कि आज तक उस सिनेरियो में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाया है। किसी ने अभी हाल ही फिलहाल कहा है कि औरत जाति जो है वो इस दुनिया की लास्ट गुलाम जाति है, अभी उसको आजाद होना बाकी है। वो आजादी क्या हम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हैं? वो आजादी हर मायने में अभी बाकी है, चाहे वो एक परिवार के लिहाज से हो, एक प्रोफेशन के लिहाज से हो, एजुकेशन के लिहाज से हो, हर लिहाज से वो अभी गुलाम है। इस गुलामी की एक बड़ी वजह ये रही है कि दुनिया में जितने भी पावर और प्रॉपर्टी पे अगर किसी का वर्चस्व है तो वो पुरुष का है, और जो भी चीजें यहाँ जो होती है वो पुरुष डोमिनेटेड होता है। और इस वर्ल्ड की एक मेंटलिटी है जिसको
पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है। इसी प्रधानता को ही खत्म करने के लिए समय समय पर दुनिया में जितने भी कानून बने हैं, जितने भी धर्म बने हैं, वो इसीलिए बने हैं कि एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए। यहाँ सिर्फ मतलब कुछ चीजें औरतों के साथ होती है जिसके जिम्मेदार औरत ही नहीं है, पुरुष भी है। जैसे भ्रूण हत्या। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई औरत ये अकेले डिसीजन ले पाती होगी कि मैं अबॉर्ट के लिए जा रही हूँ, जब तक उसका फैमिली उसको कन्विंस नहीं करता होगा। तो इसमें उसका जो गार्जियन है, जो मेल गार्जियन है, वो भी उसमें उतना ही गुनाहगार है। तो ये एक पावर और प्रॉपर्टी का जो इम्बैलेंस है, वो एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह है लॉ एंड ऑर्डर का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाना। जो भी कानून है, उस कानून को सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाना एक बड़ी वजह है। तीसरी जो बात है वो ये है कि हमारा सोच, क्योंकि अगर मैं चोर हूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मुझे ईमानदार बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि, या आप लोगों ने भी कोई नहीं देखा होगा कि एक क्रिमिनल जो जेल में गया था, जेल से वापस आने के बाद वो शरीफ हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जेल में गया है और बाहर आके भी उसने वही हरकतें की हैं जो उससे पहले करता था। तो कानून ये काफी नहीं है लोगों को नैतिक बनाने के लिए। लोगों को नैतिक बनाने के लिए एक जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपका पारिवारिक मूल्य। आप अपने परिवार में रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वो वही एक सबसे रियल और सबसे पहला एक एकेडमी है जहां पे आदमी को आदमी होने का सीख मिलता है। क्योंकि हम मानव तो आप सभी हैं, पर मानवता हम में शायद अभी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी जानवर को देखें, मैंने नहीं देखा है कि आज तक कोई मेल जो कुत्ता होता है वो किसी न किसी वे में फीमेल कुत्ते को वो एक्सप्लॉइट या टॉर्चर किसी तरह का करता है। और मैंने आज तक ये भी नहीं सुना है कि कभी कभी किसी जानवरों ने किसी का रेप किया हो। ये सब हमारे मानव जाति में ही होता है। तो ये बड़ा मतलब शर्म का विषय है कि मतलब ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां रेप जैसी घटनाएं होती हैं। और भाई साहब ने बताया था कि 54 मिनट्स में एक रेप होते हैं। ठीक है, 54 मिनट्स में एक रेप होते होंगे, पर मुझे लगता है कि हर पल और हर मिनट कहीं न कहीं किसी न किसी औरत के खिलाफ कुछ न कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन का तरह सिर्फ ऑफिस ही नहीं है और स्ट्रीट ही नहीं है, फैमिली में भी होता है। क्योंकि वो हम ही होते हैं जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो हम ही होते हैं जो अपने घरों के अंदर आते हैं। तो जब हम एक बाहर में हम किसी स्त्री को, किसी महिला को इज्जत नहीं दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम अपने घर में आकर के उस महिला को इज्जत दे सकते हैं। और अगर जब हम अपने घरों में अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम स्ट्रीट पे जाने के बाद, रास्तों पे जाने के बाद हम किसी को बेइज्जती या किसी को शर्मसार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है पारिवारिक मूल्य। और तीसरा जो मैं बात रखूंगा वो ये रखूंगा कि जैसे भारत में ऐसे बहुत सारे भारत में कभी कभी क्या अभी भी वुमेन को एक SC ST का हम स्टेज एक दर्जा देते हैं।
और हम कहते हैं कि वो उनके जैसे हैं, SC ST के जैसे हैं, वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। फिर SC ST को डेवलपमेंट के लिए उनको एक मेन मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में बड़े सारे पॉलिटिक्स हुए। अंबेडकर आए, काशीराम आए, मायावती आए, पर अंबेडकर खुद उस क्लास से नहीं थे। उनका कहना था कि मैं एक दलित जरूर पैदा हुआ हूं, पर मैं एज अ दलित कभी नहीं मरूंगा। और वो मरे भी नहीं, वो शायद जब मरे तो बौद्ध थे। उसी तरह से काशीराम भी आए दलितों को आगे लाने के लिए, पर वो दलितों को जितना आगे लाए उससे बहुत आगे वो खुद आए, क्योंकि उन्होंने उनका दामन वहीं तक आगे लेकर के आए जहां तक उनको अपना फायदा था। मैंने ये कहानी इसलिए ये अननेसेसरी था, फिर भी मैंने बताई यहाँ पे, क्योंकि भारत की महिलाओं को भी लगता होगा कि कोई आएगा और उनकी स्थिति में कोई सुधार करेगा। ये सच है कि कोई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही, क्योंकि किसी न किसी को तो अपनी राजनीति की रोटी सेकनी ही होगी, और वो आगे आके महिलाओं की स्थिति में बदलाव और सुधार की बात करेगा। लेकिन यहां पे भी फिर वही बातें होगी कि वो सुधार भी वहीं तक होगा जहां तक एक पुरुष चाहेगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप में से कोई आए, महिलाओं में से कोई आए, क्योंकि बैंडेज आपकी उंगली कटी होगी और आपके दर्द को मैं बयां करूंगा। मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आप उस दर्द को महसूस करते हुए बयां करेंगे कि जब ये मेरी उंगली कटी तो मुझे दर्द कैसा हुआ। तो वो आपका जो एक तजुर्बा होगा वो एक अलग होगा। तो इसके लिए औरतों का पॉलिटिक्स में भी आना बहुत जरूरी है। हालांकि शायद मैं गलत जगह आने का इन्विटेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, दुनिया का हर बुरा काम अगर पॉलिटिक्स से होता है तो हर अच्छा काम भी पॉलिटिक्स नहीं होता है। किसी ने कहा है कि जब हमारे भविष्य का फैसला राजनीति से ही होती हो तो हमें भी डिसाइड करना चाहिए कि हमारी राजनीति क्या हो। तो वो दुनिया के तमाम सोशल एक्टिविस्ट और सोशल प्रेशर ग्रुप, समाज सुधारक, जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसी राजनीति के साथ ही बार्गेनिंग करते हैं किसी न किसी रिफॉर्म के लिए। तो क्यों नहीं हम खुद ही पॉलिटिक्स में आए और अपने रिफॉर्म को आगे लाएं। एक आखिरी बात मैं ये कह रहा था कि दुनिया थोड़ी सी ग्लोबल हुई है। दुनिया थोड़ी सी ग्लोबल हुई है और उसमें क्या है कि इसको ये कह लीजिए कि काम मतलब बहुत सारी चीजों का स्कोप खुला है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी स्कोप हुए हैं जिसमें एक्सप्लॉयटेशन के भी तरीकों में बदलाव आया है। तो कुछ लोग जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, पता नहीं क्या क्या कंटेस्ट होता है, जैसे मीडिया का किसी भी प्रोडक्ट की मॉडलिंग पे फीमेल को एक्सपोज करना, पता नहीं इसको इंटेलेक्चुअल किस रूप में देखते होंगे। हालांकि इसके दोनों ही पहलू हैं। एक तरफ आपको अपने परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है, तो दूसरी तरफ आपको एक्सप्लॉइट करने का भी मौका मिला है। आज का युग टेक्निकल है। पहले एबॉर्शन नाम की चीज नहीं होती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि कोख में जो पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के जरिए उसको जान पाते हैं और हम उसको रिपोर्ट करा देते हैं कि ये लड़की है। तो ये सब चीजें हैं जिनको आप अपने ध्यान में रखते हुए और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को आप रोक सकते हैं। और रोकने का
जो सबसे पहला जो शर्त है वो आपका पारिवारिक मूल्य है। मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। शुक्रिया।